a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. The sun comes up, it's the new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul.
10,000 reasons for my heart to find. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Oh, bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. No, my soul, I worship Your holy name. 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 Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. 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 I'll worship Your holy name. On that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my
वो मन्ना प्रभु आप ही देते हैं। धार्मिकता के वस्त्रों के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। अपने रूप में आप हमें बदल रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। अपनी स्तुति करना सिखा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। भोज के मेज में जब सहभागी हों तो हम इन वचनों को ध्यान से सुने, ध्यान से सीखें जो परमेश्वर का वचन कहता है। जब यीशु ने रोटी तोड़ने और उस वाचा के लहू, जो शब्द वाचा आया है, ध्यान से सुनेंगे। जो शिक्षाएं आपको मिलती हैं, यहाँ पर सब प्रकार की शिक्षा आपको मिलती है। ये मेरी वाचा का वो लहू है। प्रभु भोज में शामिल होने से पहले आपको और मुझको इस शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए। वाचा शब्द, ठीक है, वाचा शब्द को समझना आपके और मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रभु भोज में सहभागी होने से मैं हाथ जोड़कर आप में से हर एक से निवेदन करती हूँ, जहां कहीं पे भी आप हैं, ये आराधना का समय, परमेश्वर का समय परमेश्वर को दें। आप अपने सर पर चिड़ियों को घोंसला बनाने ना दें। वचन सीखने की पारी आती है तो हम अगल और बगल झांकते हैं। बाइबल कहती है जो व्यवस्था सुनने से अपने कान को फेर लेता है, मतलब सुनने वाले नहीं, सीखने वाले, शिक्षा को लेकर अपने उत्तम हृदय में, उत्तम शरीर में और आत्मा में ग्रहण करने वाले बने, उसको अंगीकार करने वाले बने, उसकी आज्ञाओं का पालन करने वाले बने। कई लोग प्रभु भोज गलत रीति से, अनुचित रीति से खाने के कारण निर्बल हैं। उनकी आत्मा निर्बल है, उनकी आत्मा में रोग है, उनकी आत्मा में श्राप है। जो आपकी आत्मा में है वही आपके शरीर में है। मैं इस वचन पर पूरा विश्वास करती हूँ कि यीशु के नाम से, यीशु के लहू से तुम धोए गए, तुम पवित्र ठहरे। आइए मेरे साथ पढ़ें पहला कुरिन्थियों की पुस्तक। आप, ये सत्य बात है कि आप पर मैं यीशु मसीह के लहू से धोए गए, यीशु मसीह के लहू से हम शुद्ध हुए, पवित्र हुए हो परमेश्वर के द्वारा। आप और हम धर्मी ठहरे। हालेलुया। 6वां अध्याय उसका 11 वचन। हाँ, और तुम में से कितने ऐसे थे, चलो पढ़ो, हमारा पास्ट कैसा था,
हमारा प्रेजेंट कभी भी बाइबल आपके मुझको प्रेजेंट मतलब आज के विषय में नहीं, हम कल के विषय में अपना कल हमेशा अपने सामने रखो। जब हम परमेश्वर के घराने में शामिल होते हैं, हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हमको सुसमाचार सुनाया जाता है। क्या है सुसमाचार? कौन बोलेगा? सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह ने तुम्हारे पाप ले लिए। तुम्हारे ऊपर जो दंड की आज्ञा थी, यीशु ने वो दंड जो तुम्हारा था, तुमको उसने फ्री कर दिया। उसने तुमको मृत्यु से छुटकारा दिया। अब मृत्यु तुम पर नहीं प्रभुता कर सकती है, क्योंकि मृत्यु के डंक को यीशु मसीह ने तोड़ दिया। मृत्यु का कारण क्या था? मृत्यु का कारण पाप था। पाप की मजदूरी मृत्यु थी। परंतु गॉस्पेल ये है, ए लोगों सुनो, ए दाऊद के नगर सुनो, ए बेथलेहम सुनो, ए मनुष्य तू सुन, ए नारी तू सुन, ए जवान तू सुन, कि यीशु मसीह ने तुझे पाप के दंड की आज्ञा से तुम्हें आजाद कर दिया, तुम्हें स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया! तुम आजाद हो। अब तुम पापी नहीं हो। तुम्हारे पाप का भार उठा दिया गया। अब तुम्हें जेल जाने की जरूरत नहीं है। तुम श्रापित नहीं हो। कैसे भाई? ओ यीशु ने तेरे श्राप ले लिए। ये सुसमाचार है। ये सुसमाचार है। जब हम बाइबल में सुसमाचार सुनकर आते हैं तो बाइबल हमें इस बात को कहती है, अब तुम ऐसे नहीं हो। आपको परमेश्वर कैसे देखता है? मुझे परमेश्वर कैसे देखता है? आइए हम पढ़ें 1 कुरिन्थी 6 उसका 7 से। हाँ, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो ये है हाँ, कि आपस में मुकदमा करते हो। हाँ, अन्याय क्यों नहीं सहते? हाँ, अपनी हानि क्यों नहीं सहते? हाँ, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते हाँ, और हानि पहुंचाते हो, हाँ, और वह भी भाइयों को। हाँ। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना तुम होंगे? नहीं जानते, अगर हम भाई कहलाकर किसी को ठगते हैं, उसके साथ धोखा करते हैं, उसके साथ व्यभिचार करते हैं, उसके साथ गंदे काम करते हैं, उसको बुराई में फंसाते हैं, बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति ना पूजक, मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना पुरुषगामी, ना चाहे चोर। संसार में कुछ भी हो जाए, कोई भी चीजों को ऐलान कर दिया जाए, आप बाइबल कभी नहीं भूलना। हर पुरुष स्त्री से ही विवाह करे, हर स्त्री पुरुष से ही विवाह करे, और स्वाभाविक रीति से करे और स्वाभाविक रीति से मेल रखें। जैसा संसार सिखाता है वैसा नहीं, परंतु जैसा परमेश्वर ने सिखाया है। ये संसार, क्योंकि तुम जानो, अगर तुम संसार के तरीके सीख रहे हो, तुम संसार के तौरों पे चल रहे हो, एक बात जान लो, तुम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। ना चोर, ना चोर, ना लोभी, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जो वाचा यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे बांधी है, वो क्या थी मेरे प्रियो? सबसे पहले उसने नूहा से एक वाचा बांधी। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में अगर आप जाके पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य, आइए यहाँ पर हाथ रखे रहना। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय मैं जल्दी से समाप्त करने जा रही हूँ। प्रभु भोज की विधि है, पर इससे पहले अपनी आत्मा को आप तैयार करें। जो परमेश्वर का समय है परमेश्वर को दे, जो सेवा का समय है वो सेवा को दें, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। अब देखो, जब जब अधर्म बढ़ा तब तब परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ, और जब परमेश्वर का न्याय प्रथम पृथ्वी पर
सृष्टि पर प्रकट हुआ तो जल प्रलय के द्वारा उसने सारी पृथ्वी को नाश किया। केवल नूह के विषय में एक धर्मी परिवार 8 प्राणियों को परमेश्वर ने बचाया और उसको बचाने के लिए उसने एक जहाज बनाने के कार्य नूह को सौंपा। और नूह परमेश्वर की आत्मा, सामर्थ, बुद्धि, ज्ञान, अगुवाई से उसने उस जहाज को बनाया और 8 प्राणी सहित उसके घराने समेत और हर एक जीव जंतु में से एक एक नर और नारी उस जहाज में रहे। और परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को अधर्म और पाप के कारण परमेश्वर का न्याय प्रकट हुआ और सारी पृथ्वी जो थी जल प्रलय के द्वारा नाश हो गई। आज इस पृथ्वी में वर्तमान समय में नूह का जहाज कलीसिया को बिलोंग करता है। आज इस अधर्म भरी दुनिया में कलीसिया में होना, कलीसिया के देह के अंग होना, मेरे प्रियो, परमेश्वर का न्याय जब आपके घराने में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके देश में, आपकी कॉलोनी में, आपके समाज में जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा। ये समय है पश्चाताप करने का। मैंने उनसे पूछा, आप मुझे बताइए, अगर कोई समझना ना चाहे, कोई सीखना ना चाहे, प्रेम को नहीं समझ पाता है, आज परमेश्वर के लोग आपके घरों में कहते, आइए ना भैया, आओ ना, आओ दुआ प्रार्थना में आओ, ये मत करो, ऐसे मत करो, आपसे प्रभु प्यार करता है। अच्छा आप बीमार हो, ठीक है हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप कंगाल हो, अच्छा हम आपके लिए प्रार्थना। तो ना जाने मनुष्य क्या सोचता है, जैसे हमें पड़ी है। तुम्हें बाहर वाला कोई पूछता है? आदर किसको देना चाहिए? जो आपकी केयर करता है, हाँ या ना, यस और नो। जो आपसे प्यार करता है, निस्वार्थ प्यार करता है, आपसे कुछ नहीं मांगता, आपसे कुछ चाहता नहीं है। बाइबल कहती है ये वाचा शब्द के अर्थ को समझना है। कई लोग तो चर्च में केवल शारीरिक उन्नति के लिए आते हैं, कोई गलत भी नहीं है, पर ये तो देखो मेरे प्रभु ने मुझ असफल को सफल बनाया। मैं उसका आदर करूं, मैं उसकी महिमा करूं, मैं उसके पीछे चलूं। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने नूह को बचाया। और देखो 6वें पद में बाइबल क्या कहती है, कैन और हाबिल का पाप इतना बढ़ गया, संसारिकता, शारीरिकता इतनी बढ़ गई कि मैं आपको क्या बताऊं। आप देखो 6वें अध्याय के पहले वचन को आप पढ़ें। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, हाँ, और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, हाँ, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। दूतों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। आज विश्वासियों को नहीं देखते हैं। आज हम पवित्रता और धार्मिकता को नहीं देखते हैं, ये अधर्म है। बाइबल कहती है ईश्वर के पुत्रों ने जब मनुष्य के पुत्र और पुत्रियों को देखा तो क्या किया उन्होंने जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। आज चर्च में आपके आने का मकसद क्या है? आपकी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। जवान लड़के और लड़कियों से मैं कहती हूं, हर स्त्री पुरुषों से मैं कहती हूं कि अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाओ। आपकी आंखों में कभी अपवित्रता नहीं झलकेगी। ये अधर्म है, ये पाप है, ये पाप है। और लिखा है 3 वचन में, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा। मेरी आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता नहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीरी ही है और उसकी आयु परमेश्वर ने 120 वर्ष की होगी।
आप सोचो, परमेश्वर ने मनुष्य की आयु को 120 वर्ष और 90 में तो अब 70 और 80 और बोले ज़्यादा तुम बादाम सदाम खा के बढ़ा लो, पर वो भी देखो कई लोगों के सेंस चले गए हैं। परंतु एक आत्मिक मनुष्य की उम्र 33.5 वर्ष ही रहती है। वो काबू की मानिंद होते हैं, हिरनियों के समान होते हैं, खजूर के समान होते हैं, देवदार और लबालोन के समान होते हैं। हम कोई ऐसा नहीं कि आपको नहीं खाना चाहिए, मैं तो नहीं पसंद करती हूँ। मैं यीशु के लहू में इतना विश्वास करती हूँ कि मेरे यीशु के लहू में बादाम की पौष्टिकता पाई जाती है, काजू की पौष्टिकता पाई जाती है। तुम्हारे बादाम खा के तो पेट फूल जाता है, पर मेरे प्रभु का पौष्टिक लहू पीकर मेरे को ये सब बातों पर विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास यीशु के लहू पर है, जिसने कहा मेरी ये वाचा का लहू है जिसे मैं तुम्हें पीने के लिए देता हूँ, जिसमें सब कुछ पाया जाता है, तेरे पाप क्षमा होते हैं। उसने कहा मैं मनुष्य से कभी वाद विवाद मैं नहीं करूंगा। बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते? आइए हम उसे पढ़ें। कितनी अच्छी बात है। पहला 6 अध्याय उसके लिखा, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। परंतु तुम में से कितने ऐसे ही थे? अपने पड़ोसी से कहो हम थे पर आज हम नहीं हैं। बोलो पहले थे पर आज नहीं है। कितना अच्छा है परमेश्वर। तो तुम कैसे हो? आइए खड़े होके पढ़ें 11 वचन। हाँ, तुम में से कितने ऐसे ही थे, हाँ, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हाँ, और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, हाँ, और पवित्र हुए, हाँ, और धर्मी ठहरे। ओ हालेलुया, हालेलुया। वाचा यीशु की देह और यीशु के लहू में शामिल होने के लिए मेरे प्रियो, ये जो वाचा का शब्द है, ओ नूह के, अगर उसके उत्पत्ति के 9वें अध्याय में आप जाओ, परमेश्वर इस वाचा को सबसे पहले नूह के साथ उसने वो बांधा। और बाइबल कहती है कि सचमुच में मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर का न्याय इस धरती पर प्रकट हुआ। हालेलुया। और पहली पृथ्वी जो है वो जल प्रलय के द्वारा नाश हुई। और जब मनुष्य मरने लगे, 9 के घर में जाके पढ़ना, मेरा समय वो हो रहा है, पर कभी भी मैं आपको इसको धीरे धीरे जरूर आपको समझाऊंगी। जब जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी नाश हो गई, मनुष्य का नाम और निशान मिट गया, तो बाइबल कहती है वो परमेश्वर ने बादल में एक धनुष रखा। परमेश्वर ने बादल में एक धनुष रखा। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। ये शब्द मतलब आप देखो, धनुष जो है वो हमेशा युद्ध के शस्त्र के रूप में उपयोग किया जाता है। अच्छा, धनुष का जो वो है, वो हमेशा देखना उसका तीर जो होता है वो ऊपर की ओर होता है, उसका झुकाव नीचे की ओर होता है। मतलब परमेश्वर ऊपर है। उद्धार का कार्य यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उस धनुष को कहा मनुष्य की सुरक्षा मेरे हाथ में है। मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर की मृत्यु और इब्राहिम की वाचा। मेरा समय कम है पर मैं आपको जरूर बताऊंगी, पर मैं इस समय आपको छोड़ रही हूँ। वाचा शब्द के अर्थ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर के विरोध में जब मनुष्य ने पाप किया, न्याय प्रकट हुआ। नूह के ऊपर प्रकट किया गया। नूह को जहाज बनाने के लिए कहा गया और नूह के ऊपर इस बात को प्रकट किया गया, मैं इस पृथ्वी को नाश करने पर हूँ। वो परमेश्वर का न्याय था। जब परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी को नाश करना आरंभ किया, उसके बाद वो देखा उन्हें अच्छा नहीं लगा। नूह को जहाज से निकालकर उसने सबसे पहले उसने नूह से एक वाचा बांधी, मेरे प्रियो, कि जब जब मैं न्याय के विषय सोचूंगा, आप पृथ्वी को जल के द्वारा नाश नहीं करूंगा। और आप देखना, जब भी जल बहुत ज्यादा बरसने लगता है, आपको हमेशा वो धनुष जो है वो आपको आकाश में दिखाई देता है। आज भी मैं सोचती हूँ, जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते या बाइबल सुनना नहीं चाहते या बाइबल पढ़ के भी नहीं समझना चाहते, आप देखो वो चीज दिखाई देता है जो बाइबल में
ये परमेश्वर का वाचा है कि अब मैं मनुष्य को जल के द्वारा मैं कभी नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। उसकी तुलना प्रभु यीशु मसीह से की गई है। हालेलुया। मृत्यु की तुलना की गई है। अगर आप भजन संहिता 69 अगर आप उसका 1 और 2 पढ़ें तो धनुष से निकलने वाला जो तीर है मेरे प्रियो, वो मनुष्य के पाप को दिखाता है, पाप को दिखाता है। 69। हाँ जी 69। हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ। हाँ। मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ। हाँ। और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। हाँ। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूँ। आप ये इसको पढ़ते हैं ना, मैं धाराओं में डूबा जाता हूँ। परमेश्वर के न्याय जो धाराओं के समान है। आप सोचो, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा, क्रूस के द्वारा यीशु के ऊपर होकर गुजरना बादल में। आपको बताओ, मनुष्य अगर पाप से छूट सकता है, अधर्म से छूट सकता है, परमेश्वर के करीब आ सकता है, तो केवल यीशु मसीह के द्वारा है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक केवल यीशु और यीशु है। आप कैसे यीशु को छोड़ सकते हैं? ऐसा दीवानापना मत कीजिए तंत्र मंत्र के समान। और यीशु का स्वभाव हमारे जीवन में बिल्कुल भी नहीं है। ये यीशु मसीह की निशानी है, ये क्रूस का वो है। इसलिए उसने कहा ये तो नई वाचा है। नूह की वाचा एक पुरानी वाचा थी, पर यीशु मसीह जो आपके और मेरे लिए कितना अच्छा लिखा कि वो हम उसके नाम से, उसकी पवित्र आत्मा से, उसके पवित्र लहू से हम धोए गए, शुद्ध हुए, पवित्र ठहरे और धर्मी ठहरे। जब हम ऐसे मेज में हम सहभागी होते हैं तो हम यीशु के उस उत्तम बलिदान को, उस वाचा को हम स्मरण करते हैं मेरे प्रियो। प्रभु भोज की ऐसी शिक्षाएं हैं मेरे प्रियो। आज लोग बिना शिक्षित हुए इसे खाते हैं। मैं आपसे कहती हूँ, प्रभु की सेवकाई आप अपने आप नहीं कर सकते। आप मसीही अपने आप नहीं बन सकते। आप प्रार्थना अपने आप नहीं कर सकते। आप अपनी आत्मिक जीवन की उन्नति अपने आप नहीं कर सकते। आप अपने आप चर्च नहीं खोल सकते हैं। आप अपने आप बड़कपन और बढ़ाई और प्रशंसा, आप मुझे बताओ, पहले तो तुम ऐसे ही थे। यहाँ पर कौन सा मेरा नाम लिखा है, कौन सा इसमें मेरे कार्य लिखे हैं, परंतु अब तुम उस लहू के द्वारा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा तुम धोए गए, तुम शुद्ध ठहरे, तुम धर्मी ठहरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। हम अपने प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। जब भी उस धनुष को देखो, उस वाचा को याद करना। हालेलुया। उस लहू के वाचा को, वो उस तीर को आप याद रखना, वो जो यीशु मसीह, हालेलुया, उस सुरक्षा को आप याद रखना जो यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझको मिली है। मैं आपसे कहती हूँ कि चर्च आने का समय, आपकी भेंट देने का समय, आपका दशवांश क्या बड़ा है? आपका आना बड़ा है? हाँ, आपका आज इतने देर तक यहाँ खड़े होना बड़ा है? आप सोचो कि दुनिया तो आपको पापी कहती है, अधर्मी कहती है, पियक्कड़ कहती है, गाली देने वाला कहती है, अधर्मी कहती है, आपको कोई पसंद नहीं करता। परंतु जब आप प्रभु के घर में आते हो तो बाइबल कहती है, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, वो कहता है, तू मेरा है, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी पुत्री है। मेरे लहू के द्वारा मैंने तुझे धोया है, तुझे शुद्ध किया है, मैंने तुझे धर्मी बनाया है। ओ मेरा तेरे साथ वाचा है कि मैं अपने न्याय को इस रीति से तुझ पर प्रकट नहीं करूँगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा मुझे पाप के बंधन से छुड़ाया है। हालेलुया। इसलिए हमें यीशु का प्रचार करना है।
आप यीशु मसीह का प्रचार कीजिए, बहुत लोगों को प्रभु के पास लाइए, उसके घर का सदस्य बनाइए। हालेलुया। केवल प्रचार कर कर के छोड़े ना, लोगों को बताए ना, किसी को जबरदस्ती भी ना लाए। जबरदस्ती प्रभु भोज मत खाए, क्योंकि जो कोई अनुचित रीति से खाता है, इस वाचक की सहभागिता को, इस शिक्षा को नहीं समझता है। हम ईसाई लोग खूब खाते हैं, इसको समझते नहीं हैं, ना कभी ऐसी टीचिंग हमको दी जाती है, इसके खाने के अर्थ को नहीं, एकदम ऐसे ही खा लेते हैं। परंतु तुम सत्य को जानते हो। हालेलुया। ये परमेश्वर के न्याय जब इस धरती पर प्रकट हुआ तो परमेश्वर ने सब लोगों को नाश किया, परंतु वो धनुष जो ऊपर की ओर है वो यीशु है, वो क्रूस है, वो क्रूस का वो कार्य है, ये उसका वो बलिदान है। जब जब मैं उसको याद करूँगा, वो सचमुच में मेरे प्रियो, आपको और मुझको परमेश्वर नहीं देखता है। आप कभी मत सोचना, हम तो ऐसे बन ठन के चर्च आते हैं कि ओहो स्वर्गदूत हमारी स्नैप खींच खींच के लेके जा रहे हैं। प्रभु तो तुमको पहचानता ही नहीं है, पर किसको पहचानता है? यीशु को। हालेलुया। वो मुझे देखता है कि मेरे यीशु को देखता है। हालेलुया। वो मुझे देखता है, यीशु को देखता है, वो हमें नहीं देखता। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। और आपके विषय में जो गवाही दी जाती है वो यीशु मसीह देता है। हालेलुया। सो हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। इसलिए उसने रोटी ली, हालेलुया, उससे तोड़ी और उसने कहा ये मेरी देह तोड़ी गई है आपके लिए, इसे खाओ, ये मेरी देह है, मेरी देह है, खाओ। कि तुम्हारा ये मरणहार जो शरीर है, ये अभिलाषाओं से भरा हुआ शरीर है, वो अभिलाषाओं के लिए ये मृत्यु से संबंधित है। इसकी शिक्षा बहुत गहरी है मेरे प्रियो। मैं आपको बताऊं, सच में कहती हूँ, जब तक कि मेरा शरीर पाप की मृत्यु में, इब्राहिम की क्या वाचा थी, अब मैं बोलूंगी तो टाइम बहुत हो जाएगा। सो मुझे अपने शरीर के लिए मरना है, शारीरिक अभिलाषाओं के लिए मरना है, क्योंकि तुम्हारे पाप के कारण मेरी देह ये तोड़ी गई। मेरी देह को खाओ, क्योंकि जब मैं आऊंगा तो तुमको अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। है कब्र तेरी जय हो। कब्र हमें रोक नहीं सकता, समुद्र मुझे रोक नहीं सकता। अगर मैं जीवित रही मैं रोक नहीं सकती। ये देह को खाने के द्वारा मेरी देह उजली होती है, और एक दिन प्रभु आएगा, मेरा अधूरापन मिट जाएगा, नीले आसमां के पार जाएंगे जहां मेरा यीशु रहता है। हालेलुया। उसी प्रकार उसने कटोरे के पीछे ये लहू भी लिया और धन्यवाद करके कहा, ये मेरी वाचा का वो लहू है जो तुम्हारे पापों को शुद्ध करने के लिए, तुम्हें धर्मी बनाने के लिए, तुम्हें पवित्र बनाने के लिए और परमेश्वर के सन्मुख खड़े होने के लिए मेरा ये लहू बहाया गया। लो, इससे पियो, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मेरा लहू तुम्हें सेध में धर्मी ठहराता है। हमारे पाप धुल जाते हैं, वंश की बीमारियां, ओ सही ढंग से प्रभु भोज खाने वालों के जीवन में बीमारियां नहीं होती हैं। सही ढंग से प्रभु भोज खाने वालों के अंदर शैतान की शक्तियां काम नहीं करती हैं। सही ढंग से प्रभु भोज को ग्रहण करने वाले लोग ईर्ष्यालु, झगड़ालु नहीं होते। पहले तुम ऐसे थे, पर अब तो तुम उस लहू के द्वारा धोए गए, शुद्ध हुए, पवित्र ठहरे और धर्मी ठहरे। हालेलुया। हम अपने प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। हम विनती करते हैं इस तेल और जल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।